Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with discussing your session number 2 for all my dear grade 10 students. So real numbers का ये session number 2 है, last session है पूरे chapter का. In our previous session we discussed about the fundamental theorem of arithmetic along with examples and exercises question. So today we are here with completing the chapter session 2 करेंगे जहाँ पे हमारा last topic of proof of irrationality वो डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स जो भी 10th ग्रेड में है, एंड सब्सक्राइब टू चैनल राइट अवे. सो as you know, Euclid's division lemma is deleted. Revisiting rational numbers and decimal hexameter deleted. अब fundamental theorem of arithmetic we have already discussed yesterday in our last class, and today we are here with doing revisiting irrational numbers. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं irrational numbers. You know what is it? So we are going to just quickly recap, and we will say that how can we prove a number is irrational. All right, so let's see. Now, when I say irrational number, what comes in your mind? You know that rational numbers, yes, we know, right? Rational numbers are the numbers which can be written in the form of P by Q, where P and Q they belongs to the integers and Q is not equals to 0, isn't it? So irrational number is the total opposite. Irrational numbers जो होते हैं we cannot write them in the form of p by q. p by q के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते. And डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इरेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. वो जाता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं, रैंडम नंबर्स जैसे. ओके, दैट इज इरेशनल. एग्जांपल पाई 3.145, it keeps on going, right? Then 1.142849, it keeps on going. Other examples are what? Like root 2, root 3, 5 root 3. All of these are examples of irrational numbers because I cannot write in the form of p by q. Now, look over here. I have given some numbers. Okay, I'll not say all are irrational, I'll say some numbers. Root 2, root 3, root 4, root 5. Now, can you tell me which of this is not a irrational number? All of them have roots. What is the difference then? If you look at root 4 can be written as root 2 into 2. That means it is nothing but 2. So value of root 4 is nothing but 2. I can write it in the form of 2 by 1, isn't it? In the form of rational number. So it is not irrational. Okay, now comes the question here. So yes, that is not the irrational thing. Now come over here. Let us now check. You know that the values of the number, see, like root 2 is what it is nothing but 1.41421356. root 3 is this, root 5 is that. Okay, now how can I say? In your previous grades you directly said that yeah, root 5 is irrational, but now we have to study how can we prove irrationality. Okay, decimal expansion never repeat. How do we prove that? So we need to prove it somehow. So the method used for proving, जो method हम use करते हैं for proving any number irrational is known as the method of contradiction. मतलब जो उन्होंने हमको बोला हम उसका उल्टा करेंगे. लाइक उन्होंने बोला है कि रूट 2 को प्रूफ करो irrational है, हम बोल देंगे कि रूट 2 rational है. ठीक है, so let us see how do we do it. Okay, no theory is there in this. Let us solve many questions now. Now we have to prove root 2 is irrational. Let us say you will write the steps as assume root 2 is rational. उसको irrational डायरेक्टली तो हम प्रूव नहीं कर सकते, कोई मेथड नहीं है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करना है. हम बोलेंगे कि रूट 2 रैशनल है. ठीक है, अगर रूट 2 रैशनल है तो हमको कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएगी. लेट अस से रूट 2 इज रैशनल, दैट मीन्स हम उसको p by q फॉर्म में लिख पाएंगे, वेर p and q आर को प्राइम. दिस स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एंटायर सोल्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा कि p and q को प्राइम है. रूट 2 इरेशनल हो गया, दैट मीन्स I can say root 2 is equals to p by q.
राइट। उसका मतलब ये हो गया ना, आई कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। करेक्ट, रैशनल है तो हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। लेट अस से अब पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, किसी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सो आई कैन से दैट क्यू रूट टू इज इक्वल्स टू पी, isn't it? It is equals to p. All right. अब क्या करते हैं? Okay, before this step, I have an idea. Let us make it easier. रूट ही निकाल देते हैं, रूट ही निकाल देते हैं रूट टू का. How? By squaring both sides. Correct. This is an explanatory. That's why I'm writing everything up. Because we are not going to write everything again and again. It will be time consuming. This is the first question. That's what I'm doing. Okay. Now we'll square on both sides. रूट टू का स्क्वायर हो गया 2 और इधर हो जाएगा p square by q square. Isn't it? Perfect. Now दिस इज वॉट आर स्टेप वी आर गेटिंग करंटली. ठीक है, अभी हमने क्या किया, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया. ओके, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, एंड वी रिमूव द स्क्वायर. ओके, नाउ कैन आई से, चलो 2 को नीचे ले जाते हैं. कैन आई से दैट p square by 2 is equals to q square. आई कैन से दैट, नो, आई टुक इट डाउन. सो अगर ये स्टेप मिल रहा है आपको, पी स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर आंसर मिल रहा है ना, एक क्वोशंट मिल रहा है. सो आई कैन से दैट देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. करेक्ट, पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना. अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है तो दैट मीन्स पी इज ऑल्सो डिविजिबल. पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो ऑब्वियसली p भी तो डिविजिबल ही होगा, राइट. सो फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर इज 4. 2 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. यस, इवन 2 इज डिविजिबल बाय 2, राइट. सो दैट मीन्स p स्क्वायर बाय p बाय 2. आई कैन राइट दैट p बाय 2 डिविजिबल है दोनों, और ये हमको एक नंबर देते हैं, लेट्स से m. हमको एक आंसर मिलता है m. ठीक है, और अगर हमको p की वैल्यू ढूंढनी है, दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू 2m. ठीक है, परफेक्ट, नो डाउट स्टिल हियर. अब जाते हैं हम पीछे, इस वैल्यू को इधर डाल देते हैं. इफ आई पुट दैट वैल्यू उधर, सो व्हाट विल आई गेट, 2m होल स्क्वायर. 2m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. क्यों? क्योंकि 2 हमने उधर भेज दिया, साइड में चला जा. ठीक है, अब that means 2m whole square means 4m square is equals to 2q square, right. अब q square क्या हो जाएगा, q square will be equals to 4m square by 2. 1s are 2s are, so what we are getting, q square is equals to 2m square. Correct, we are getting this thing q as this. अब m को उधर ले जाते हैं, so what will we get, m square is nothing but q square by 2. हाँ, अरे q स्क्वायर बाय 2 आ गया. दैट मीन्स अगेन द सेम स्टेप, दैट मीन्स q इज डिविजिबल बाय 2, है ना. q इज डिविजिबल बाय 2, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो हेंस q विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2. ठीक है, मिल गया. अब आता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन. व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन, हमने तो बताया कि p एंड q को प्राइम है. यहाँ तो p भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है, मतलब p एंड q का कॉमन फैक्टर है 2. मतलब वो कोप्राइम हो ही नहीं सकते, बिकॉज कोप्राइम आर सच नंबर्स कि उनका बस कॉमन नंबर 1 ही होगा. बट यहाँ पे तो 2 भी है. सो व्हाट कैन वी से विद दिस, सो आपकी स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, hence 2 is common factor of p and q, therefore p and q are not co-prime. मतलब वो co-prime नहीं है, उनका तो common factor है 2. therefore our contradiction is false, and hence root 2 is
इरेशनल। ठीक है, तो हमने अपना कॉन्ट्राडिक्शन फॉल्स कैसे प्रूफ किया? हमने बोला कि हमने तो स्टार्टिंग में लिख दिया था ना कि पी और क्यू जो है पी बाई क्यू फॉर्म में वो को प्राइम होंगे, है ना, वो दैट इज द क्राइटेरिया, राइट, को प्राइम होंगे। बट यहाँ पे तो दोनों टू से डिविजिबल है, तो को प्राइम बचा ही नहीं वो, सो हेंस रूट टू रैशनल नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, दैट्स हाउ यू प्रूव दिस क्वेश्चन। देखो, दिस इज द एंटायर सेम स्टेप आई सेड यू, ऑल दोस थिंग्स आर रिटन ओवर हियर। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। रूट थ्री, सेम स्टेप्स करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल द स्टेप्स, लेट अस अज्यूम एंड एवरीथिंग, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, सो लेट अस क्विकली सॉल्व इट। ठीक है, रूट थ्री को एज बोर्ड एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको स्टेप्स लिखना चाहिए, ये ज्यादा 1-2 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, 3 या 5 मार्क्स में ही आएगा। रूट थ्री को इरेशनल करना है, पहले हम अज्यूम करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी कि रूट थ्री रैशनल है, दैट मीन्स रूट थ्री कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, next what you will write, this you will get, you will say that p square by 3 is equals to q square। p square by 3 मतलब p is divisible by 3, करेक्ट। देर उधर साइड पे ये लिखना, एग्जामिनर को अपने आप नहीं पता चलेगा उधर 3 है, इधर से आप नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करोगे नहीं, इधर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर p is divisible by 3। ऑल राइट, नेक्स्ट, अभी p डिविजिबल बाय 3 है, सो p बाय 3 हमको एक कांस्टेंट देगा m। ठीक है, यू कैन टेक एनी अदर नंबर x y z एनीथिंग। अब इसको ऊपर पुट करते हैं वैल्यू को, सॉरी हाँ, p is equals to m, so p will be equals to 3m। all right, so put करो वैल्यू, 3m square is equals to 3q square, 9m square is equals to 3q square। अब q की वैल्यू क्या है, q square will be 9m square by 3, 1s are 3s are, so what are we getting over here? We are getting that q square is equals to 3m square, correct? So m square will be what, m square will be nothing but q square by 3। so हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमको मिल रहा है कि अगेन this implies that q square is also divisible by 3। अगर divisible है तो दोनों को प्राइम नहीं है, it proves our contradiction wrong, so root 3 becomes irrational। ठीक है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हुआ। ऐसे एक एक डिजिट का तो यू कैन डू इट इजीली। नाउ लुक ओवर हियर, 5 माइनस रूट 3 हम कैसे प्रूफ करेंगे रैशनल? इजी मेथड है। नाउ व्हाट आई विल गिव यू अ शॉर्टकट, नाउ आई विल टेल यू हाउ। अब देखो, 5 माइनस रूट 3, अगेन सेम स्टेप फॉलो करते हैं, इसको प्रूफ कर दो कि ये है क्या, रैशनल, इज इक्वल्स टू p by q। all right, that is p by q। अब देखो, रूट 3 5 कम उधर ले जाते हैं, सो इट विल बिकम रूट 3 इज इक्वल्स टू p माइनस p बाई क्यू माइनस 5। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, p माइनस 5q डिवाइडेड बाय q। ठीक है, ये मिल जाएगा हमको। ऑलराइट, ये मिल गया। अब व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट, इतना मिल गया। अब दैट मीन्स रूट 3 इज इक्वल्स टू p माइनस 5q बाय q। ठीक है, ये हमको मिल रहा है। ठीक है, अब हमने पहले ही प्रूफ किया। अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या है, अब इस क्वेश्चन में यू कैन आइदर गेट फुल मार्क्स और यू कैन इधर गेट जीरो। ठीक है, आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं तो जीरो भी मिल सकते हैं, दैट इज इन योर हैंड्स हाउ यू विल डू इट। नाउ लेट मी टेल यू हाउ। अब देखो, हमने इसके पीछे क्या प्रूफ किया था, हमने इधर क्या प्रूफ किया कि 3 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है। सो अगर रूट 3 हमको ऑलरेडी पता है कि इरेशनल है, सो दैट मीन्स 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। बट क्या आप एग्जाम में लिख सकते हो? नहीं, एग्जाम में कोई भी एग्जाम अगर उन्होंने पहले क्वेश्चन में रूट 3 का पूछे, फिर भी 5 माइनस रूट 3 में फर्स्ट यू हैव टू प्रूव रूट 3 इरेशनल। पहले आप रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करोगे, फिर वापस इस स्टेप पे आके बोलोगे एज रूट 3 इज इरेशनल, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 विल आल्सो बी
इर्रेशनल। ऐसा आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि रूट थ्री इर्रेशनल, एग्जामिनर को नहीं पता कैसे इर्रेशनल है, बताओ। सो ये हर क्वेश्चन में पहले जो भी रूट है पहले आपने ऑलरेडी सॉल्व किया पेपर में कहाँ पे भी, पर अगेन यू हैव टू प्रूव इट, देन ओनली यू कैन गेट फुल मार्क्स, ठीक है। अभी देखो थ्री रूट टू का देखते हैं। थ्री रूट टू इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू। ऑलराइट, थ्री रूट टू इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू। सो रूट टू क्या हो जाएगा, रूट टू विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन थ्री क्यू, करेक्ट। पी अपॉन थ्री क्या हो गया, अगेन रूट टू को आपको इरेशनल प्रूफ करना पड़ा, कैसे हमने स्टार्टिंग में किया है, द सेम मेथड यू हैव टू यूज, ठीक है। सो रूट टू वी नो एज इरेशनल, सो देयरफॉर थ्री रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। डायरेक्ट ये स्टेप आप नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि रूट टू कोई भी रूट हो आपको हमेशा पहले प्रूफ करना है। यहाँ पे आई ऑलरेडी प्रूफ, आई एम नॉट प्रूविंग इट अगेन, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल। चलो अभी रूट फाइव है, वी विल डू इट। अब देखो कैसे करना है, लुक एट माई स्टेप्स। टू प्रूव, आई एम टेलिंग यू द स्टेप्स, नॉट राइटिंग इट, रिमेंबर इट। To prove 3 plus 2 root 5 irrational, let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational. 3 plus 2 root 5 is rational. Means I can write it in the form of p by q. ठीक है, उधर जाके पहले सब्ट्रैक्शन होगा, that means 2 root 5 is equals to p minus LCM भी ले लो 3q by q. आई एम राइटिंग डायरेक्ट स्टेप, यू कैन नॉट राइट दैट। अगर आपने डायरेक्ट स्टेप लिखा 1 मार्क चला जाएगा, डायरेक्ट 1 मार्क। सो राइट द स्टेप वाइज, ओके। अब ये तो हो गया, अभी 2 को भी उधर ले सकते हैं, सो रूट 5 इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, करेक्ट, 2 उधर जाएगा, सो क्या बन जाएगा, p माइनस थ्री क्यू बाय टू क्यू। बस छोड़ दो इतना, इसको इधर ही छोड़ दो। अब आते हैं दूसरी तरफ पे, अब हम प्रूफ करेंगे रूट फाइव को इरेशनल। रूट फाइव कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, हम बोलेंगे इरेशनल है, ठीक है। रैशनल बोल दिया हमने कि ये रैशनल ही है, ठीक है। रूट फाइव रैशनल हुआ, दैट मीन्स स्क्वायर करोगे बोथ साइड्स पे, विल गेट 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। सेम मेथड बट नंबर का डिफरेंस होगा, ठीक है। सो पी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, therefore p square is divisible by 5, ठीक है। You can write the thing, no, divisible by 5, okay। So p square is divisible by 5, so you will say that p is also divisible by 5, so p by 5 will give me a number m, ठीक है। एक नंबर कांस्टेंट नंबर देगा m, and p will be equals to 5m। अब इसको इधर पुट करोगे, 5m square is equals to 5 उधर चला गया, 5q square, correct। That means 25m square is equals to 5q square. अब q square will be what, q square will be 25 m square divided by 5, 5 कट गया, ये भी 5 बन गया, q square is giving me 5m square, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, करेक्ट, हम क्या ढूंढेंगे, m square will be q square by 5, again q square, therefore q square is divisible by 5, therefore q is also divisible, hence p and q are co-prime, that is false, and a contradiction is proved wrong, hence root 5 is irrational, ठीक है। रूट 5 इरेशनल प्रूफ हो गया, डन। सो अजम्पशन रॉन्ग था, ये इस फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो 3 प्लस 2 रूट 5 भी इरेशनल ही होगा, ओके। दैट इज योर मेथड, ओके। नाउ आगे चलते हैं, 1 बाय रूट टू। 1 बाय रूट टू अगेन सेम मेथड है, 1 बाय रूट टू लिखना इक्वल्स टू पी बाय क्यू फॉर्म, रेसिप्रोकल है, सो रूट टू विल बी व्हाट, रूट टू विल बी क्यू बाय पी, ठीक है। अब रूट टू हमको पता है, इरेशनल कैसे प्रूफ करोगे, पूरा वो वापस लिखो, रूट टू का कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करो, रूट टू हो जाएगा इरेशनल, सो दैट मीन्स 1 बाय रूट टू इज ऑल्सो इरेशनल, ओके। हो गया ये। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द सेम थिंग अगेन रूट फाइव ने अभी तो हमने सारे किए है ना, सो अगेन वी डू नॉट नीड टू डू, इट विल वेस्ट टाइम। अब 7 रूट 5, 7 रूट, आई विल जस्ट टेल यू द मेन स्टेप क्या करना है। 7 रूट 5 में इक्वल्स टू पी बाय क्यू पहले लिखोगे कि रैशनल है, एंड देन रूट 5 विल बी इक्वल्स टू पी बाय 7q, ठीक है, p बाय
7q. So again आप 5 को रूट क्या करोगे, यू विल राइट इट, यू विल प्रूव इट एज इरेशनल, तो 7 √5 भी बन जाता है इरेशनल. ठीक है. नाउ 6 + √2, जब भी प्लस आता है ना, 6 + √2 इज इक्वल्स टू p/q. √2 को उधर ही रहने दो, √2 इधर आ जाएगा और इधर सब्ट्रैक्शन कर दो, p/q -6. अब -6 को कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, -6q डिवाइडेड बाय q. ठीक है. सो अगेन √2 को प्रूफ करो. आपको एग्जाम में यही पूछेंगे, ज्यादातर वो लोग डायरेक्ट डायरेक्ट √2 √3 इन बोर्ड एग्जाम बहुत ही कम आता है. एज पर द प्रीवियस पेपर्स डायरेक्ट एक एक नंबर √3 √5 बहुत कम आते हैं. दे मेनली यूज सच टाइप ऑफ नंबर्स, 6 + 3 √2, 6 - 5 √2, 5 √3, ऐसा ही पूछते हैं वो लोग. ठीक है. सो सेम स्टेप है, जस्ट आपको मेन है प्रूफ करना irrational. So with this we have completed with the today's session and the chapter of real numbers. हमारा मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर ऑफ ग्रेड 10th is completed. Congratulations. So make sure to solve some extra questions from NCERT exemplar or some other previous year papers. If you want any help, make sure to write down in the comment section. I'll be seeing you in our upcoming chapters. The next chapter of maths is polynomials. Till then, take care and goodbye.